We are solving question number 21, April 2010. April 2010. Following is a trial balance of Sunil Limited as on 31st March 2009. Stock in trade 3,59,000. Cash at bank 1,11,000. Stock in trade inventories, cash at bank, cash and cash equivalent. Preliminary expenses, other non-current asset. Loan from State Bank of India. Long-term borrowings, sundry debtors, trade receivable, creditors, trade payable, profit and loss, reserve and surplus, bills receivable, trade receivable, bills payable, trade payable, outstanding expenses, other current liability, prepaid expenses, will be short-term loans and advances, investment in shares of Rohan, 7,000 equity shares of 10 each, rupees 6 per share called and paid up. Subscribe capital, share capital, 4,000 preference shares of 100 each, 85,500 equity shares of 10 each. Authorized capital of the company was 5,007% preference shares of 100 each and 1 lakh equity shares of 10 each. However, company issued 4,007% preference shares of 100 each and 90,000 equity shares of 10 each to the public. Yeah, entire adjustment share capital से related students. Number B. Dividend on preference shares is in arrears for 2 years, 7, 8 and 8, 9. Contingent liability. देखो internal reconstruction में भी ये होता था. Preference dividend in arrears. So it's a contingent liability. Number C. Bank statement shows a wrong credit of 1,000 on 29th March 2009. The same being detected and adjusted by the bank on 1st April 2009. Out of the issued capital, 1,007% preference shares of 100 each were issued for consideration other than cash. Again share capital से related है, तो share capital से related दो adjustment हो गया, A and D. One bills receivable, so put a mark on bills receivable. One bills receivable of 10,000 endorsed in favor of Rolta Limited, our supplier means creditor, has been returned dishonored on 26th March 2009, for which entry has to be made in the books of accounts. ठीक है students? Next is balance of 1,47,500 in loan account with State Bank of India. Loan from State Bank of India, 4th item from the top. उस पे mark कर दो. Balance of 1,47,500 in loan account with State Bank of India is inclusive of 17,500 for interest accrued but not due. Loan is secured by hypothecation of stock. Debtors are unsecured, considered good. Balance at bank includes 9,000 with Goregaon Cooperative Urban Bank, which is not a scheduled bank. Market value of investment in shares of Rohan was 30,000. So investments are related. Second last item, third last item in trial balance. Market value of investment is 30,000 and market value of stock is 3,80,000. You are required to prepare balance sheet as per schedule 3 students. वो मेरे पास old book है तो इसमें schedule 6 लिखा हुआ है, but अभी companies amendment act 2013 में it is schedule 3. ठीक है? So we'll start first with what we decide the numbers students, है ना? Share capital है obviously students, company है तो share capital जरूर होगा. फिर रिजर्व्स है क्या? कोई ट्रायल बैलेंस में रिजर्व्स था, देखो पीएनएल आया था, पीएनएल इज अ रिजर्व. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नो लॉन्ग टर्म प्रोविजन. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, बैंक ओवरड्राफ्ट वगैरह नहीं. ट्रेड पेबल्स था, यस, सो नंबर 4. अदर करंट लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स, नंबर 5. शॉर्ट टर्म प्रोविजन, आई डोंट थिंक सो, कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं था स्टूडेंट्स, नहीं था. ओके, फिक्स्ड एसेट था स्टूडेंट्स, जस्ट वंस अगेन देख लो ट्रायल बैलेंस. स्टॉक, कैश, लोन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, देयर इज नो फिक्स्ड एसेट. देखो कोई भी फिक्स्ड एसेट नहीं है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, यस, नंबर 6. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नो. अदर नॉन करंट एसेट, यस, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, 7. करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेंट्रीज है, स्टॉक, यस, स्टॉक इन ट्रेड 8 है. ट्रेड रिसीवेबल है, 9. कैश इक्विवेलेंट है, बैंक अकाउंट वगैरह था ना, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एट बैंक, सॉरी. शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, यस. अदर करंट एसेट नहीं है. सो इन ऑल वी रिक्वायर 11 नोट्स स्टूडेंट्स, है ना? 11 नोट्स बनाने हैं हमको. ओके, स्टार्ट करते हैं.
नंबर वन हमेशा शेयर कैपिटल ही होता है स्टूडेंट्स। ऑथराइज दिया भी है एडजस्टमेंट नंबर वन में, सो वी लीव 3 लाइन्स फॉर दैट। देन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड। इश्यूड, सब्सक्राइब, पेड अपनी इक्विटी प्रेफरेंस है, उसका एडजस्टमेंट भी है, सो वी लीव 4 लाइन्स, 1 2 3 4 5, चलो ठीक है 6 लाइन्स रखते हैं। नंबर 2 इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। how many reserves were given? I think स्टूडेंट्स एक P&L लिखा था ये, क्या स्टॉक इन ट्रेड P&L लिखा है, एंड देयर वाज नो रिजर्व्स, और एडजस्टमेंट में भी कोई रिजर्व्स नहीं है। ऑथराइज कैपिटल, डिविडेंड है, बैंक स्टेटमेंट, आउट ऑफ इश्यूड कैपिटल, नो मोर, एक ही रिजर्व्स है, सो 2 लाइन बहुत है उसके लिए। नंबर 3 वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इट वाज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, वो लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका एक एडजस्टमेंट भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। एक एडजस्टमेंट था, और कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग तो नहीं था, सो 3 लाइन्स फॉर दैट इनफ है। 4th हमारा जो कुछ सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड तो नहीं था, लोन है स्टूडेंट्स, सो बेटर एक और लाइन छोड़ देते हैं। नंबर 4 वी डिसाइडेड ट्रेड पेएबल्स, उसका एक एडजस्टमेंट भी है। नंबर 5 वी डिसाइडेड other current liabilities. Number 6 on the next page, non-current investments. Number 7 was other non-current asset. एक ही था वो आइटम। Number 8 was inventories, ये भी एक ही है। Number 9 trade receivables, डेटर्स था और बिल्स रिसीवेबल भी था ना, और डेटर्स अनसिक्योर्ड गुड 6 मंथ्स ड्यू वाला तो एडजस्टमेंट नहीं है, नो। ओके 3 लाइन्स फॉर दैट, 1 2 3 4, चलो ठीक है। नंबर 10 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लास्ट 11 was short term loans and advances, मैंने शॉर्ट में ADV लिख दिया, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, सो दीज मैंने शेड्यूल नाउ नोट्स वी हैव टू ड्रॉ। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स पोस्टिंग से। पहला स्टॉक इन ट्रेड 3,59,000, सो इन्वेंट्रीज में आएगा नोट नंबर 8 में स्टॉक इन ट्रेड। उसका एक एडजस्टमेंट स्टूडेंट, दे हैव गिवन अस मार्केट वैल्यू। देखो उसका मार्केट वैल्यू कितना दिया था, इट वाज गिवन इन विच एडजस्टमेंट, लास्ट मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 380, सो 380 और 359 विच एवर इज लेस, है ना। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, बाकी उसका कोई इफेक्ट नहीं है, नो नीड टू राइट ईयर मार्केट वैल्यू, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में लिखते हैं वैसा ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू, स्टॉक में आप नॉर्मली क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, सो कॉस्ट प्राइस का हमने वो लिख लिया। कैश एट बैंक इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक इट इज गिवन इज 1,11,000। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बैंक से रिलेटेड एडजस्टमेंट था, इज 1,11,000, 1,11,000 एक एडजस्टमेंट, ओहो सॉरी बैंक के सामने लिख 1,11,000 कैश एट बैंक, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया था स्टूडेंट्स,
कैश एट बैंक 1,11,000. देयर इज एन एडजस्टमेंट, आपको ध्यान, एडजस्टमेंट नंबर सी था, बट उसका इफेक्ट मैं बाद में बताता हूँ. आई हैव रिकॉर्डेड टू आउटर कॉलम. एक्चुअली इसका कोई इफेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स. आई विल एक्सप्लेन, नो नीड टू वरी. प्राइमरी एक्सपेंसेस अदर नॉन करंट एसेट नंबर 7. Primary expenses given is 17,017. No adjustment for that, so outer column. Next क्या है? Loan from State Bank of India. It is long term borrowings. इसको स्टूडेंट्स इनर कॉलम में लिखेंगे. इसका एडजस्टमेंट है लोन फ्रॉम, मैं शॉर्ट में SBI लिख रहा हूँ. अमाउंट गिवन इज 147,500. देयर इज एन एडजस्टमेंट, बाद में सॉल्व करेंगे. सन्ड्री डेटर्स स्टूडेंट्स, इट इज ट्रेड रिसीवेबल्स. सो सन्ड्री डेटर्स ट्रेड रिसीवेबल में आएगा. हियर इसमें ड्यू फॉर मोर देन 6 months ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है स्टूडेंट्स. ओके, सो जस्ट कॉपी द अमाउंट 649,500. 649,500. Next is creditors, trade payables, sundry creditors. Inner column इसका एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. क्रेडिटर्स 1,41,500. 1,41,500. नेक्स्ट इज बराबर लिखा ना. अच्छा सुनिए, नेक्स्ट देखो क्या दिया है हमको. प्रॉफिट एंड लॉस, बट इट इज गिवन एज डेबिट बैलेंस, है ना स्टूडेंट्स. हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है. तो रिजर्व्स एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, बट उसको ब्रैकेट में लिखना अच्छा नहीं लगता स्टूडेंट्स. सो वी कैन रिकॉर्ड एज अदर करंट, सॉरी इट कैन बी रिकॉर्डेड एज अ फिक्टिशियस एसेट, अदर नॉन करंट एसेट में भी लिख सकते हैं उसको स्टूडेंट. सो विल डिसाइड क्या करना है, बट ध्यान रखना उसका वो डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट्स. इट्स अ डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है. सो अगर रिजर्व्स में लिखना है ना स्टूडेंट्स उसको, तो यू हैव टू राइट इन ब्रैकेट फॉर द सिंपल रीजन स्टूडेंट्स. रिजर्व्स में अगर लिखना है ब्रैकेट में, क्यों? बिकॉज वो डेबिट बैलेंस है. डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, वो नेगेटिव बैलेंस है स्टूडेंट्स. ठीक है, सो ध्यान रखना. विल रिकॉर्ड इट लेटर ऑन. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स. बिल्स रिसीवेबल. बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल में आएगा. उसमें एडजस्टमेंट भी है ना, मैंने गलती किया, ऊपर लिखना चाहिए था डेटर्स. बिल्स रिसीवेबल, देयर इज एन एडजस्टमेंट फॉर दिस. एक मिनट स्टूडेंट. One bills receivable of 10,000 endorsed in favor of Volta Limited, our supplier, was returned this month. One bills receivable. So bills receivable से related एक adjustment है. So उसको inner column में लिखेंगे. Bills receivable is 85,000. Next उसके बाद sundry debtors मैंने लिखा. bills receivable how much of is given? 85,000. bills receivable 85,000. okay. next क्या है? bills payable 91,000. so bills payable, outer column no adjustment for that, 91,000. Next क्या है? Outstanding expenses. Outstanding expenses we are treating it as other current liability. No adjustment for that, so outer column में लिख सकते हैं 45,000. Next is prepaid expenses, short-term loans and advances. Prepaid expenses amount is 6,500. No adjustment, so outer column. Next is investment in shares of Rohan Limited. So non-current investment. Investment in shares of Rohan Limited. Amount कितना दिया है स्टूडेंट्स? 42,000. Outer column. स्टूडेंट्स सेम वापस से पढ़ो. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड 7,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 6 per share called and paid up.
इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो गया. वाई कंटिंजेंट लाइबिलिटी स्टूडेंट्स? शेयर्स पार्टली पेड अप है. किसका शेयर्स? ये कंपनी का नाम क्या है जिसका हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, फाइनल अकाउंट्स कर रहे हैं? कंपनी का नाम है सुनील लिमिटेड. पहले भी प्रायर टू दिस क्वेश्चन आई हैव डन दिस, आई हैव डन दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट ट्वाइस बिफोर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो अभी कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, अभी इसमें स्टूडेंट्स ध्यान दो. दिस सुनील लिमिटेड हैज परचेज शेयर्स ऑफ रोहन लिमिटेड, और वो शेयर का फेस वैल्यू इज 10, बट टिल नाउ द कंपनी हैज कॉल्ड अप ₹6. तो मतलब फ्यूचर में कंपनी ₹4 मांगेगी डेफिनेटली. नाउ दैट डिपेंड्स. अगर सुनील लिमिटेड, इफ इट हेल्ड्स द शेयर्स ऑन दैट डे, दे हैव टू पे द कॉल मनी. बट सुनील लिमिटेड ऑलरेडी शेयर्स बेच चुका होगा. इफ ही हैज ऑलरेडी सोल्ड इट, सो सुनील लिमिटेड विल नॉट पे एनी कॉल मनी. आगे समझ में स्टूडेंट्स? तो अभी तो कंफर्म नहीं है ना कि वो दिन सुनील लिमिटेड के पास शेयर्स होगा कि नहीं होगा, बट इतना तो पक्का है कि कंपनी कॉल तो करेगी. सो वी से इन्वेस्टमेंट इन पार्टली पेड शेयर्स ऑफ, उसका नाम क्या था, रोहन लिमिटेड. 7,000 शेयर्स, ₹6 कॉल हो चुका है, 4 बाकी, तो 7,000 इंटू 4, 28,000. बस ऐसा आपको सेंटेंस लिखना है. ये अमाउंट कॉलम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कंटिंजेंट लाइबिलिटी. पहले भी ट्वाइस बिफोर आई हैव डन सिमिलर एडजस्टमेंट. सब्सक्राइब्ड कैपिटल, how much they have said? 4,000 preference shares, 4,007% preference shares, sorry, 4,007% preference shares of rupees. कितना है स्टूडेंट्स? of rupees 100 each. So amount column 4 lakh. Next they have given 85,500 equity shares of 10 each. Before recording that I am going to adjustment number A. पहले adjustment A कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देन विल सी कि वो क्यों नहीं लिखा था मैंने इक्विटी शेयर. आपको खुद ही एडजस्टमेंट ए से समझ में आ जाएगा. फर्स्ट दे हैव गिवन ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 5,007% प्रेफरेंस शेयर्स. ऑथराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी 5,007% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100. सो 5,000 इंटू 100 करेंगे तो इट कम्स टू 5 लाख. ठीक है, सिंपल. आगे क्या लिखा है? 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. सो बिलो दैट 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10. सो अमाउंट विल बी 10 लाख एंड डबल अंडरलाइन. ओके, सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज नॉट कंसिडर्ड व्हेन वी टेक टोटल. अब आगे पढ़ो स्टूडेंट. However, company issued 4,000 preference shares of 100 each. तो हम लिख चुके हैं, ये ट्रायल बैलेंस में दिया था. बट आगे क्या लिखा है? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each टू द पब्लिक. एंड ट्रायल बैलेंस में देखो इक्विटी शेयर्स लास्ट लाइन में क्या बोला था? 85,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each. और यहाँ पे इश्यूड क्या बोला है? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each टू द पब्लिक. सो व्हाट डज इट मीन स्टूडेंट? इश्यू किया है 90,000 शेयर्स, इश्यू किया है 90,000 शेयर. सो सेम वे आई एम रिकॉर्डिंग. देखो 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. ये मुझे कहाँ दिया है? एडजस्टमेंट में. सो 90,000 ऑफ 10 ईच मतलब 9 लाख. बट स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ट्रायल बैलेंस में तो आपको कितना दिया है? 8,55,000. सो आउटर कॉलम में यू कैन राइट 8,55,000 जो ट्रायल बैलेंस में दिया है. सो देयर इज अ डिफरेंस, 9 लाख सॉरी माइनस 8,55,000. सो 45,000 का डिफरेंस है स्टूडेंट्स. सो 45,000 यहाँ पे लिखेंगे. व्हाट इज दिस 45,000? दिस इज नथिंग बट दैट मीन्स जो बाकी शेयर्स है ना 4,500 उस पर कॉल्स इन अरियर्स है, लेस कॉल्स इन अरियर्स. Followed why I didn't record it now preference share capital when I was reading going through the trial balance. तो मैंने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया. इक्विटी शेयर लास्ट आइटम था ट्रायल बैलेंस का, वो इग्नोर किया था बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट ए में क्या लिखा है? ठीक है, ट्रायल बैलेंस में दे हैव गिवन 85,500 इंटू 10 8,55,000. सो आई रिकॉर्डेड दैट टू द आउटर कॉलम. बट एक्चुअली कंपनी ने इश्यू किया था 90,000 शेयर्स. सो 90,000 शेयर्स ऑफ 10 each 9 लाख. सो दोनों का डिफरेंस कितना है? 45,000 का. दैट इज कॉल्स इन एरियर्स. मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स हैं 4,500 नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो अभी भी पार्टली पेड अप है, जिसपे पैसा नहीं मिला अभी तक. नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट.
Many times I've said students, आपने ऐसा सीखा है ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, नॉट नेसेसरी, ध्यान रखना है चैप्टर में। तो नो सेकेंड इफेक्ट, जस्ट लेस कॉल्स इन एरियाज एंड दैट्स ऑल, आपको कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। सो एडजस्टमेंट ए डन, ऑथराइज कैपिटल भी लिख लिया, ये भी लिख लिया। दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ए। बी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज इन arrears, इट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो स्टूडेंट्स हियर विल राइट arrears ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इसमें कोई एंट्री वगैरह नहीं पास करनी, कंटिंजेंट लायबिलिटी यू हैव टू जस्ट इंडिकेट फॉर, कौन कौन का साल है, 2007, 8 and 8, 9, so I can write for 2 years, arrears of dividend for 2 years, no need to write any amount, भूल जाओ। so this was adjustment B and no second effect। अच्छा देखो, नंबर सी बैंक से रिलेटेड है, बट बैंक मैंने ऑलरेडी आउटर कॉलम में लिख दिया था, एंड एट दैट स्टेज आई सेड कि नो नीड टू वरी, इससे बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक अकाउंट को, बैंक बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाई? नाउ आई विल एक्सप्लेन। बैंक स्टेटमेंट शोज अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 1000। स्टूडेंट्स अंडरलाइन द टर्म बैंक स्टेटमेंट, ये जो बैंक स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको अंडरलाइन करो। ये ट्रायल बैलेंस है सुनील लिमिटेड का, ये बैंक का ट्रायल बैलेंस नहीं है। वी आर ड्रॉइंग बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स फॉर सुनील लिमिटेड। बैंक स्टेटमेंट शोज अ रॉन्ग क्रेडिट ऑफ 1000। तो ये रॉन्ग क्रेडिट किस में हुआ है? सुनील की बुक्स में नहीं हुआ है, बैंक के बुक्स में हुआ है। स्टूडेंट्स वी आर ड्रॉइंग फाइनल अकाउंट्स फॉर सुनील। अगर सुनील ने कुछ गलती की है, सुनील लिमिटेड ने कुछ गलती की है, तो वी हैव टू रेक्टिफाई। बट ये रॉन्ग क्रेडिट किसने किया है? बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट किसका होता है? बैंक का होता है ना। हम बैंक बुक मेंटेन करते हैं, कैश बुक मेंटेन करते हैं। बैंक स्टेटमेंट मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट बैंक, बैंक से गलती हुई थी, और आगे लिखा भी है द सेम बीइंग डिटेक्टेड, फिर वो मालूम भी पड़ गया कि गलती हुई है, एंड एडजस्टेड बाय द बैंक। तो सुनील का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सुनील लिमिटेड इज नॉट कंसर्न्ड एट ऑल। क्लियरली मिस्टेक वाज notice in bank statement and it was rectified by bank students। so हमारे बैंक बैलेंस को सुनील लिमिटेड की बुक्स में जो कैश एट बैंक है, उसकी बुक्स में जो बैंक बैलेंस है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैंक ने गलती करी तो बैंक जाने, और बैंक ने गलती भी सुधार ली तो बैंक जाने। सुनील लिमिटेड इज नॉट कंसर्न। तो एडजस्टमेंट नंबर सी, नो इफेक्ट। एडजस्टमेंट नंबर सी, नो इफेक्ट। नंबर डी, अगेन सिंपल से एडजस्टमेंट, देखो क्या लिखा है। आउट ऑफ द इश्यूड कैपिटल 1000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच वर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन एक चैप्टर होता है, वो आपको नेक्स्ट सेम में आएगा स्टूडेंट्स। उसमें ऐसा लिख देते हैं बस खाली 1000, ऐसे ब्रैकेट में 1000 7% प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन other than cash। That's all, no second effect। ये आपको सिर्फ मेंशन करना है। मतलब क्या है? देखो मैंने बहुत बार कहा है, कंपनी जो है ना पेमेंट शेयर्स के फॉर्म में कर सकती है अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। हम लोग बहुत डिस्कस करते थे, डिबेंचर होल्डर को शेयर्स दे दिया, क्रेडिटर्स को शेयर्स दे दिया। ओके, सो दैट इज व्हाट इज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब आपने शेयर्स इश्यू तो किया, बदले में कैश नहीं आया आपके पास, तो दैट्स व्हाट यू हैव टू जस्ट स्टेट इट। वो उससे कुछ प्लस माइनस नहीं करना है, ओके, ऐड सबट्रैक्ट नहीं करना है। यू हैव इश्यूड शेयर्स बट यू डिडंट रिसीव एनी कैश, तो यू हैव टू जस्ट स्पेसिफाई दैट इन ब्रैकेट। नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट। और ध्यान रखना, मैंने कुछ एडिशन सबट्रैक्शन नहीं किया है, इट्स अ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर। आपको बताना है ये, तो मैंने वो बता दिया यहाँ पे। ओके, जब बिजनेस भी खरीदती है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस खरीदती है, सो दे इश्यू शेयर्स, तो उसको कहते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब शेयर इश्यू किया, बदले में कैश नहीं मिला स्टूडेंट्स। ओके, नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट, भूल जाओ। नेक्स्ट स्टूडेंट, वन बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 endorsed in favor of Rolta Limited, our supplier। supplier मतलब creditor has been dishonored, returned dishonored। अच्छा, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो स्टूडेंट्स एंडोर्स हो चुका था वो, तो व्हाट आर द टू इफेक्ट स्टूडेंट्स फॉर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर? एक तो स्टूडेंट्स किसको हमने एंडोर्स किया था? क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स से माइनस होगा, माइनस बिल्स एंडोर्स, सॉरी ऐड होगा स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी, डिसऑनर्ड। हाउ मच दे आर सेइंग? वन बिल्स रिसीवेबल ऑफ 10,000 एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रोल्टा लिमिटेड, आवर सप्लायर स्टूडेंट्स। तो ये सप्लायर हमारा, तो यहाँ पे 10,000 ऐड होगा। So outer column we can record the amount now, 141,500 plus 10,000 will be 151,500।
नाउ स्टूडेंट्स हमसे गलती क्या हो जाती है, वहां पे टर्म क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल है ना, बिल्स रिसीवेबल लिखा है ना, तो हम लोग इसका सेकेंड इफेक्ट बिल्स रिसीवेबल में दे देंगे, बट वहां पे क्या लिखा है, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ रॉल्टा लिमिटेड। एंडोर्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बिल्स रिसीवेबल किससे मिलता है, डेटर्स से मिलता है हमको, ओके मिला बिल्स रिसीवेबल था, मैंने एंडोर्स कर दिया, मतलब उस पे नाम, पहले उस पे मेरा नाम था, दैट इज अ सिंपल मीनिंग कि आई हैव टू कलेक्ट मनी फ्रॉम माय डेटर्स। एंडोर्स करना मतलब जस्ट एन एग्जांपल, फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैंने अपना नाम काट दिया, वहां पे मेरे क्रेडिटर का नाम लिख दिया, और क्रेडिटर को क्या कहा, देखो मुझे डेटर्स ये पैसा देने वाला है 10,000, ओके व्हाट यू डू, मैंने बिल पे अभी आपका नाम लिख दिया है, जब वो ड्यू डेट आएगा, मेच्योरिटी डेट आएगा ना, तो आप मेरे डेटर के पास जाना 10,000 कलेक्ट कर लेना, दैट इज एंडोर्समेंट। मेरी जगह पे कोई दूसरा आदमी जाएगा, दैट इज अ सिंपल मीनिंग। मैंने एंडोर्स किसके फेवर में किया था, क्रेडिटर्स के। तो जब क्रेडिटर्स को मैंने बिल दे दिया था, तो एक तरह से मैंने उनको पेमेंट कर दिया था, नॉट इन कैश, आई हैव पेड इन द फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, उनके नाम से बिल एंडोर्स किया। नाउ दैट बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर, स्टूडेंट डिसऑनर हो गया तो क्रेडिटर का बैलेंस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, दैट इज द रीजन आई एडेड। जब मैंने उनको बिल्स दिया था तो आई मेड, सॉरी इट वाज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, तो मैंने ऑब्वियसली क्रेडिटर्स का अमाउंट रिड्यूस किया होगा, बट बिल्स रिसीवेबल अभी डिसऑनर हो गया, तो आई मस्ट ऐड हियर। अच्छा बिल्स रिसीवेबल किससे मिलता है, डेटर्स से मिलता है, तो डेटर्स में भी ये ऐड होगा स्टूडेंट्स, प्लस 10,000। तो स्टूडेंट्स मैं एक्चुअली इनर कॉलम में लिखना था, अभी तो ठीक है, अभी कैंसिल करना अच्छा नहीं लगेगा, 6,49,500 था, उसमें ऐड 10,000 कर लेते हैं हम लोग। सो वी एडेड टू डेटर्स एंड नाउ वी आर एडिंग टू क्रेडिटर्स, सो दिस विल बिकम 659 स्टूडेंट्स, 49 की जगह ये कितना हो जाएगा, 10,000 ऐड करेंगे तो 659। ओके दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ई, एंड वहां पे लिखा भी है फॉर विच एंट्री हैज टू बी मेड, अभी आपको इफेक्ट्स देना है तो हमने इफेक्ट्स दे दिया, 10,000 एडेड टू क्रेडिटर्स एंड 10,000 एडेड टू डेटर्स स्टूडेंट्स, ये ऐड किया हमने, दिस वाज एडजस्टमेंट नंबर ई। एफ स्टूडेंट्स बैलेंस ऑफ, ये लास्ट टाइम भी मैंने एडजस्टमेंट किया था, बैलेंस ऑफ 1,47,500 लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंक्लूसिव ऑफ 17,500 फॉर इंटरेस्ट अक्रूड, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो उसको बाहर करो स्टूडेंट्स, ऐसे इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए, तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, सो माइनस इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अक्रूड एंड ड्यू कहा है ना, बट नॉट ड्यू, सॉरी इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, कितना दे 17,500, तो यहां से माइनस कर लो, सो 147,500 माइनस 17,500 करेंगे, सो नेट आंसर विल बी 1,30,000। सेकेंड इफेक्ट इट विल गो टू अदर करंट लाइबिलिटी, यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट accrued but not due 17,500, लास्ट टाइम भी सेम ऐसे एडजस्टमेंट किया था हमने। अच्छा लोन इज सिक्योर्ड बाय हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, ये लोन ना तो उसके नीचे लिख दो सिक्योर्ड अगेंस्ट HP, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक, आप पूरा टर्म लिखना, मैंने HP मीन्स हाइपोथिकेशन। नो सेकेंड इफेक्ट, दो इफेक्ट तो हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, दो इफेक्ट दिस एंड दिस, ये सिक्योरिटी का नो सेकेंड इफेक्ट, जस्ट अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करना है। डेटर्स आर अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, सो डेटर्स के बाजू में लिख देने का अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड, हियर आई डोंट हैव स्पेस, आप डेटर्स के आसपास में कहीं लिखने का, या ऊपर जगह है तो अभी ऊपर लिख लेंगे अनसिक्योर्ड एंड गुड, देन नो सेकेंड इफेक्ट। बैलेंस एट बैंक इंक्लूड्स 9,000 विद गोरेगांव कोऑपरेटिव बैंक, जाने दो वो कौन से बैंक का बैलेंस है, लेट इट बी, हमने बैंक बैलेंस तो लिख लिया है। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 30,000, सो स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट में जाओ, बिलो लिखो, पहले भी हमने ऐसे एडजस्टमेंट किया है, मार्केट वैल्यू, सॉरी एल है, मार्केट वैल्यू रुपीज, हाउ मच दे हैव सेड 30,000, नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट। और स्टॉक इन ट्रेड का तो हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस, एंड देयर इज नथिंग एल्स। सो एडजस्टमेंट ए का एक इफेक्ट ये था स्टूडेंट्स, ये लेस कॉल्सनेरियस, वो तो ऑथराइज कैपिटल था। बी कंटिंजेंट लाइबिलिटी यहाँ लिखा। सी बैंक ने गड़बड़ की थी, सो बैंक जाने, बैंक का काम जाने, नो इफेक्ट। डी ऑल ये 1,000 शेयर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ई बिल्स रिसीवेबल जो डिसऑनर हुआ उसको यहाँ पे ऐड किया एंड डेटर्स में ऐड किया। एफ दस माइनस 17,500 यहाँ पे एंड सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी। जी
10 डेटर्स के ऊपर या नीचे कहीं जगह होगा तो लिख देना कंसिडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड एंड गुड। बैलेंस विद बैंक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी बैंक अकाउंट हो, है ना 1,11,000। दिस इंक्लूड्स 9,000 विद गोरेगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वी रिकॉर्डेड हियर, नो मोर एडजस्टमेंट्स। हो गया। अब टोटल करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। मैं पेंसिल से करता हूँ फॉर द सिंपल रीजन स्टूडेंट्स, कुछ गलती हो गई तो आई कैन रब इट आउट, नहीं तो बहुत ओवर राइट, फाइनल अकाउंट्स में एक बार मिस कर गए कुछ, सो ढूंढना मुश्किल हो जाता है एंड देन ओवर राइटिंग बहुत हो जाती है, सो आई कैन रब इट आउट इजीली। दैट इज द ओनली रीजन। 12,55,000 ये दोनों का टोटल। नेक्स्ट रिजर्व्स में तो कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, रिजर्व्स में कुछ भी नहीं था ना, सो टोटल नेक्स्ट क्या होगा। नेक्स्ट इज, सॉरी पेंसिल दूसरा दिख रहा था, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1,30,000, bills receivable and sorry creditors and this bills payable, so 151,500 plus 91, 242,500, 45 plus 17, 62,500। इन्वेस्टमेंट्स एक ही अमाउंट है 42,000। Preliminary expenses only one amount 17,000, ये भी एक ही अमाउंट है 359। Year 6,59,500 plus 85, it comes to 7,44,500। Cash bank only one amount 1,11,000। प्रीपेड एक्सपेंस 6,500। कंटिंजेंट लाइबिलिटी का कोई टोटल नहीं करते, बस उसको ऐसा लिख देना है स्टूडेंट्स एंड नथिंग एल्स। अभी ये सब बैलेंस शीट में लिखेंगे। एंड देयर वाज वन रिजर्व्स में था ना स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, वो मैं लिखा नहीं था अभी तक, तो रिकॉर्ड दैट। देखो था ना डेबिट बैलेंस, मैंने पोस्टिंग सबका किया है, भूल गया था। प्रॉफिट एंड लॉस 4,10,000, देखो ट्रायल बैलेंस में था प्रॉफिट एंड लॉस, बट इट इज गिवन ऑन डेबिट साइड, मतलब वो लॉस है। लॉस मतलब स्टूडेंट्स नेगेटिव बैलेंस है वो, प्लीज मैं लिखना भूल गया था ट्रायल बैलेंस में। तो इसका टोटल करेंगे तो नेगेटिव ही रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस 4,10,000, बट दिस इज नेगेटिव। ओके, दिस वाज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ना, एडजस्टमेंट में नहीं था, मैंने पोस्टिंग्स में भूल गया था इसको। ओके, सो ये सारे अमाउंट अभी बैलेंस शीट में लिखते हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 का टोटल, नंबर 1 टोटल इज 12,55,000, 1,255,000। नंबर 2 इज नेगेटिव 410, 410 नेगेटिव है स्टूडेंट्स। नंबर 3 इज 1,30,000, 130। नंबर 4 कितना था 242,500। नंबर 5 62,500, यहाँ तो कुछ था नहीं, ये भी नहीं था। चलो नेक्स्ट क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स 42,000 था नंबर 6। नंबर 7 is 17,000, one other non-current asset, it is actually other non-current asset। number 7 means other non-current asset, it is 17,17। number 8 359,000। number 9 744,500। number 10 1,11,000। 11 6,500। लास्ट वाला नहीं था, फर्स्ट वाला था, तो अभी टोटल 12,55,000। ये माइनस करेंगे बिकॉज दिस इज नेगेटिव, फॉर दैट सिंपल रीजन इट कम्स टू 845,000, 845,000। ये टोटल तो 130 आ जाएगा आउटर कॉलम। 242,500 प्लस 62,500, 3,05,000 plus 1,30,000 plus 845, it comes to 12,80,000 total of liabilities। asset में आ जाओ, 42 plus 17 will be 59, 359 plus 744 plus 1,11,000 plus 6,500, total is 12,21,000 plus 59, so 12,80,000 बैलेंस शीट टैली हो गई। ओके स्टूडेंट्स, फॉर योर रेफरेंस, जैसे मैंने कहा था
हर एडजस्टमेंट का ना इफेक्ट्स लिखने का। देखो ऑथराइज कैपिटल एडजस्टमेंट ए तो सिंपल था, एक एडजस्टमेंट ए का इफेक्ट क्या था, लेस कॉल्स इन अरियर्स हमने किया, एक ही इफेक्ट दिया स्टूडेंट्स, ओके। और एक और इफेक्ट क्या था, एक डिस्क्लोजर था। डिस्क्लोजर क्या था कि 1000 प्रेफरेंस शेयर्स आर इश्यूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये इसको हम लोग डिस्क्लोजर कहते हैं ना, उसको खाली दिखाना है आपको, कुछ प्लस माइनस नहीं करना, ठीक है। ये एडजस्टमेंट ए था। बी डायरेक्टली हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी में लिख लिया। सी का नो इफेक्ट, हमने कुछ नहीं किया उसका, बिकॉज बैंक ने गलती की है, वो बैंक जाने, बैंक का काम जाने। डी सॉरी दिस वाज डी, डिस्क्लोजर जो था ना स्टूडेंट्स, ये एडजस्टमेंट डी था। 1000 प्रेफरेंस शेयर्स मैंने गलती से ए में लिख दिया। सो ए बी सी एंड डी वाज डिस्क्लोजर, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स वर इशूड एज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ई हमने क्या किया, एड टू क्रेडिटर्स, और हमने एक जगह और ऐड किया डेटर्स में ऐड किया, ऐड टू डेटर्स, ठीक है। ऐड टू डेटर्स, ऐड टू क्रेडिटर्स। एफ स्टूडेंट्स, एफ पहले भी मैंने किया ये एडजस्टमेंट, लेस किया हमने किसमें, वो लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, LTB लिख दिया मैंने शॉर्ट में, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से माइनस किया। और सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी, OCL मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अदर करंट लाइबिलिटी। जी जाने दो, एच का भी कोई इफेक्ट नहीं, और मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट तो सिंपल एडजस्टमेंट, ठीक है। तो दीज वर द इफेक्ट्स फॉर द एडजस्टमेंट। ये आपका बैलेंस शीट। सो देखिए ना, ओनली बैलेंस शीट या ओनली P&L या दोनों साथ में, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो बैलेंस शीट P&L दोनों पूछेगा। राइट नाउ वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन बैलेंस शीट, सिर्फ बैलेंस शीट के क्वेश्चन कर रहे हैं। आगे करेंगे स्टूडेंट्स, P&L का भी करेंगे, फिर दोनों बैलेंस शीट P&L दोनों भी करेंगे। यानी ये हमारा नोट्स टू अकाउंट्स था। एक खाली डेटर्स को मुझे इनर कॉलम में लिखना था, देन प्लस दैट बिल्स रिसीवेबल, वो अभी मैंने ऐसे कर लिया एंड रिकॉर्डेड टू आउटर कॉलम, ओके। Now we are solving students April 2008 solve कर रहे हैं, April 2008 following is the balance sheet of Triple K Limited as on 31st March 7. Fixed asset net block, fixed asset में जाएगा, investments non current investment, closing stock inventories, debtors trade receivables, preliminary expenses, other non current asset, staff advance, short term loans and advances, advance tax, ये provision for tax के साथ में adjust करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, 8% डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, एडवांस टू सप्लाई अदर करंट एसेट्स, एडवांस टू सप्लाई कैन बी अदर करंट एसेट, या फिर इसको हम लोग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में भी लिख सकते हैं। बेटर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एडवांस टू सप्लायर, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कैश इन हैंड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लोन फ्रॉम डायरेक्टर मिस्टर डी, लोन लिया है इन्होंने, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा स्टूडेंट्स, दिस विल गो टू शॉर्ट टर्म बोरिंग। लोन फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, शॉर्ट टर्म बोरिंग, क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, पीछे एडवांस टैक्स का यहाँ प्रीवियस पेज पे, तो प्रोविजन फॉर टैक्स इज बिगर देन एडवांस टैक्स, तो दोनों शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, बोथ विल बी रिकॉर्डेड अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट पहले भी हमने किया, ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50,000, जनरल रिजर्व 25, सो पुट ए मार्क ऑन डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, पुट ए मार्क ऑन जनरल रिजर्व। मेरी बुक में प्रीवियस पेज पे है, डिबेंचर ओल्ड बुक है मेरा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व पे एक मार्क करो, जनरल रिजर्व पे एक मार्क करो, ओके। नेक्स्ट देन, कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट 15% आफ्टर डिक्लेयरिंग प्रेफरेंस डिविडेंड। स्टूडेंट्स व्हाट वी डू, पहले भी मैंने बताया, इसका हम लोग क्या करते हैं कि जैसे एक नोट लिख देते हैं कि कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड, बस, इसका और कोई दूसरा इफेक्ट नहीं होता है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, नो सेकेंड इफेक्ट, वी जस्ट राइट अ नोट कि कंपनी हैज डिक्लेयर्ड डिविडेंड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्या किया उन्होंने, entire authorized capital has been issued and subscribed, 8% debentures are secured against fixed asset,
figure in trial balance includes interest accrued and due 25,000. So students go to that loan 8% डिवेंचर पे मार्क कर दो, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसा एडजस्टमेंट किया था. लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड सब्सिडरी कंपनी आर अनसिक्योर्ड. ठीक है. क्रेडिटर्स इंक्लूड क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 40,000 while for expenses 18,500. Put a mark on creditors. स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ, तो पुट ए मार्क ऑन स्टॉक. स्टॉक था ना प्रीवियस पेज पे था, क्लोजिंग स्टॉक, उस पे मार्क कर दो. इट कंप्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. ऑफ द डेटर्स, डेट्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months इज 22,500. ऑल डेट्स आर सिक्योर, अनसिक्योर्ड एंड कंसिडर्ड गुड. सो डेटर्स पे मार्क कर दो. इट इज जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन. पहले भी बहुत बार किया आपने ऐसे एडजस्टमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ट्रायल बैलेंस इज अराइव्ड एज अंडर. पुट ए मार्क ऑन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस. ओके, नेक्स्ट क्या है? इग्नोर प्रीवियस ईयर फिगर. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव एडजस्टमेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन. स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं होता, पहले बनता था. ये ओल्ड बुक है, इसमें इसके लिए ऐसा लिखा हुआ है मेरे पास जो है. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं होता है. आफ्टर कंसिडरिंग द अबव एडजस्टमेंट प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज एट डेट इन वर्टिकल फॉर्म. वैसे भी वर्टिकल फॉर्म ही होता है एज पर शेड्यूल 3 रिक्वायरमेंट्स विद फॉलोइंग शेड्यूल्स. ओके, अभी हॉरिजॉन्टल फॉर्म नहीं है कंपनी के लिए, वर्टिकल फॉर्म नहीं है, तो एग्जाम में आपको हॉरिजॉन्टल पूछेगा भी नहीं स्टूडेंट्स, दे विल आस्क वर्टिकल फॉर्म. तो पहले हम लोग शेड्यूल्स हमारे डिसाइड कर लेते हैं कौन कौन सा हमको शेड्यूल बनाना है स्टूडेंट्स. ओके, स्टार्ट. शेयर कैपिटल ऑब्वियसली यस. रिजर्व्स भी था ना, P&L नंबर 2. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था, डिबेंचर 3. प्रोविजन नहीं था. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स, वो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम सब्सिडरी, नंबर 4. ट्रेड पेबल भी था ना, क्रेडिटर्स था स्टूडेंट्स, यस क्रेडिटर्स था. 5. अदर करंट लाइबिलिटी है स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट में 6. शॉर्ट टर्म प्रोविजन है 7. फिक्स्ड एसेट था क्या स्टूडेंट्स? एक ही था ना फिक्स्ड एसेट, बिगिनिंग में नेट ब्लॉक करके दिया था. ओके, दैट विल गो टू नंबर 8. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट था स्टूडेंट्स, कोई इन्वेस्टमेंट आई डोंट थिंक सो, नहीं इन्वेस्टमेंट था, सॉरी था. नंबर 9 हो जाएगा वो इन्वेस्टमेंट. लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, कोई लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं था स्टूडेंट, देयर वाज नो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. और क्या था हमारा? अदर नॉन करंट एसेट्स था कुछ, अदर नॉन करंट एसेट्स, स्टाफ एडवांस, प्राइमरी एक्सपेंसेस था ना स्टूडेंट्स, दैट इज अदर नॉन करंट एसेट, दैट विल बी नंबर 10. सॉरी, अदर नॉन करंट एसेट. फिक्टिशियस एसेट नंबर 10 में जाता है, अदर नॉन करंट एसेट. करंट इन्वेस्टमेंट नहीं. इन्वेंट्रीज था यस 11. ट्रेड रिसीवेबल था यस, डेटर्स 12. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश बैंक बैलेंस दिया था, फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट, एडवांस टैक्स या कैश इन हैंड बैंक बैलेंस दोनों दिया है. 13. शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस यस, वो प्रीपेड एक्सपेंस स्टाफ एडवांस था. सो इन ऑल 14 नोट्स हमको बनाना है स्टूडेंट्स, इन ऑल 14 नोट्स हमको बनाने हैं. ओके, स्टार्ट करते हैं. पहले नोट्स बनाएंगे. Number 1, share capital. Authorized, कोई ऑथराइज कैपिटल था इन्वेस्टमेंट में स्टूडेंट्स? नहीं था शायद. ट्रांसफर कंपनी डिसाइडेड टू था. ऑथराइज कैपिटल हैज बीन इशूड इन सब्सिडाइज, या देयर वाज एन एडजस्टमेंट. ठीक है, कोई बात नहीं. सो लीव 3 लाइंस फॉर दैट. ऑथराइज के बाद हम लोग लिखते हैं इशूड, सब्सक्राइब्ड, paid up. Issued, subscribe, paid up के बाद number 2 will be reserves and surplus. कितने रिजर्व्स थे स्टूडेंट? एक P&L था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व भी था ना, फिर कुछ ट्रांसफर्स के एडजस्टमेंट भी थे, सिक्योरिटी प्रीमियम था, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व था, जनरल रिजर्व 4 हो गया, P&L 5, उसमें 2 लाइन लगेगा, नेट प्रॉफिट और 2 एडजस्टमेंट. तो ऑलमोस्ट 10 लाइन्स हो जाएगा मिनिमम. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो यहाँ से लिखते हैं. नंबर 3 हमने डिसाइड किया था लॉन्ग टर्म बोरिंग.
लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कितना आइटम्स है स्टूडेंट्स? एक 8% डिबेंचर्स था और उसमें कुछ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, ऐसा करके एडजस्टमेंट दिया था उन्होंने, है ना। कंपनी ट्रांसफर डिबेंचर रिडम्पशन एंटायर, हाँ, बैलेंस इंक्लूड्स 25,000 या फिगर गिवन इन ट्रायल बैलेंस इंक्लूड्स, ठीक है। सो उसका एडजस्टमेंट भी, सो लीव 3 लाइन्स फॉर दैट। फिर फोर्थ क्या था हमने देखा था, फोर्थ वाज शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, वो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स, लोन फ्रॉम सब्सिडियरी कंपनी, वो यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट पेज पे नंबर 5 था ट्रेड पेएबल। कितना ट्रेड पेएबल था? क्रेडिटर था और शायद बिल्स पेएबल दोनों था, सॉरी, ट्रेड पेएबल, क्रेडिटर्स था, बिल्स पेएबल भी था, यस। और क्रेडिटर्स का स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट दिया ना, क्रेडिटर्स इंक्लूड सो एंड सो, सो 4 लाइन्स फॉर दैट, 1 2 3 4। नंबर 6 other current liability, other current liabilities। नेक्स्ट है नंबर 7 शॉर्ट, अच्छा अदर करंट लाइबिलिटी कितना था? आई थिंक एक ही था स्टूडेंट्स, वो इंटरेस्ट अक्रूड और ड्यू डिवेंचर्स का, और कुछ नहीं था। 7 इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स हमको एडजस्ट करना है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स इज ग्रेटर दैन मोर दैन एडवांस टैक्स, वो यहाँ पे आएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। सो उसके लिए 3 लाइन बहुत है। नंबर 8 हमने क्या डिसाइड किया था? फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में कोई डिटेल्स नहीं है, जस्ट फिक्स्ड एसेट्स ही उन्होंने कहा है स्टूडेंट्स। देन नंबर 9 वाज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। एक ही था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बस इन्वेस्टमेंट, उसको कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है, मार्केट वैल्यू ऐसा कुछ तो कहा नहीं है। सो नंबर 10 हमने डिसाइड किया था अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था स्टूडेंट्स, है ना, वही आएगा, खाली एक ही है वो। नंबर 11 क्या था? इन्वेंट्रीज, वो क्लोजिंग स्टॉक था, इन्वेंट्रीज। नंबर 12 वाज ट्रेड रिसीवेबल्स, आई थिंक इसमें खाली डेटर्स था स्टूडेंट्स, बट उसमें एडजस्टमेंट था, ड्यू फॉर मोर, ऐसा कोई एडजस्टमेंट था? डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन, हाँ है, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, तो सिर्फ वो आएगा डेटर्स। 1 2 3 लाइन में हो जाएगा। 13 इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। एंड लास्ट नंबर 14 क्या था स्टूडेंट्स? शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, उसमें 3 आइटम है, तो यहाँ तो पेज पे नहीं आएगा, तो स्टूडेंट्स मैं इसको कहीं एडजस्ट करता हूँ, नो नीड टू वरी। हाँ, मैं चाहता हूँ कि पूरा सोल्यूशन ये 2 पेज पे आपके सामने रहे, दैट इज द ओनली रीजन आई डोंट वांट टू गो टू द नेक्स्ट पेज। एडजस्ट कर लेंगे उसको, नो नीड टू वरी। अकाउंटिंग स्टूडेंट्स एक्सपर्ट होते हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट विथ डेबिट साइड। अच्छा कहाँ लिखूँ उसको? नंबर 13 2 लाइन में होगा, 14 इफ आई राइट हियर, और मैं ऊपर मार्जिन में लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स, नहीं तो ओके आई विल रिकॉर्ड इन द मार्जिन एट द टॉप, ध्यान बाद में लिखूंगा लास्ट में एकदम उसको, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ पोस्टिंग्स है, सो आई कैन रिकॉर्ड इन द एंड, खाली ध्यान रखना। नंबर 1 सॉरी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट कितना का है उन्होंने स्टूडेंट, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली आउटर कॉलम 7,50,000। इन्वेस्टमेंट्स, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, नो देयर वाज नो एडजस्टमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, कोई मार्केट वैल्यू कुछ नहीं, सो यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स। Investments, how much it was given? 2,50,250, no adjustment, so outer column. Closing stock का एक adjustment था, but again students, this is just what we call it as a disclosure. देखो adjustment number G, stock comprises of raw material, work in progress, ऐसा ही दिया है ना students. So inventories में लिखेंगे हम लोग, inventories का मतलब ही होता है stock, तो उसमें आपको ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा, raw materials, WIP work in progress and
finished goods. Okay, amount they have given us, देखो कितना है रॉ मटेरियल्स एडजस्टमेंट में 2,50,000, 50 and 75, 2,50,000, 50 and 75, टोटल करो 375 होता है स्टूडेंट्स, एंड सेम टोटल इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस 375. सो आपको कुछ ऐड सबट्रैक्ट नहीं करना है, वो 375 आपको ऐसा अलग अलग सेग्रीगेट करके अलग अलग सेपरेटली हाउ टू रिकॉर्ड इट कि 375 कंसिस्ट ऑफ दीज 3 आइटम्स, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स. नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट. डेटर्स पे आ जाओ, डेटर्स का भी एडजस्टमेंट था ना स्टूडेंट्स. ओके, सो विल गो टू ट्रेड रिसीवेबल. डेटर्स अभी मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ज्यादा स्पेस नहीं है. ड्यू फॉर, नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख रहा हूँ, ड्यू फॉर मोर देन, पहले बहुत बार हमने किया है एडजस्टमेंट 6 मंथ्स. देखो एडजस्टमेंट नंबर H, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स इज 22,500 एंड बिलो वी राइट व्हाट, अदर्स. स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितना है देखो, 1,22,500. सो दिस शुड बी 1 लाख अदर्स, तभी तो टोटल 122,500 होगा आउटर कॉलम में. ओके, नो सेकेंड इफेक्ट, पहले भी हमने एडजस्टमेंट किया. डेटर्स के बाद प्राइमरी एक्सपेंसेस 20,000, अदर नॉन करंट एसेट, कहां पे, अदर नॉन करंट एसेट नंबर 10. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, how much it is given, 20,000, 20, again outer column, no adjustment. Next is staff advance, short term loans advances. Students, ये जो शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस है मैं लास्ट में जहाँ स्पेस देखूंगा वहां पे लिख दूंगा शेड्यूल नंबर 14. और एल स्टूडेंट्स देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, प्लीज लुक हियर. ये वर्किंग नोट नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ द आंसर. वो पेज पे जगह नहीं है तो वो नोट नंबर 14 में यहाँ बना रहा हूँ. इट इज नोट नंबर, और आपको पेन से लिखना है आपकी नोटबुक में. ओके, 14, आई हैव स्पेस हियर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ. क्या है वो, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. 13 नोट्स मैंने मेरी नोटबुक में बनाए, मुझे नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना है. फॉर दैट रीजन आई एम रिकॉर्डिंग नंबर 14 यहाँ पे स्टूडेंट्स. तो अभी क्या है हमारे सामने, स्टाफ एडवांस. एंड स्टूडेंट्स पेंसिल से क्यों लिख रहा हूँ, सिंपल रीजन, मुझे पेज बाद में यूज करना है. दैट इज अ सिंपल रीजन. आप लोग पेन से लिखो, स्टाफ एडवांस 1 लाख. ओके, देयर इज नो एडजस्टमेंट, तो समझो ये हमारा आउटर कॉलम ही है. स्टाफ एडवांस के बाद क्या है, एडवांस टैक्स. एडवांस टैक्स एंड प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्ट होगा एंड देन विल रिकॉर्ड इट. ओके, नेक्स्ट 10 क्या दिया एडवांस टैक्स के बाद, bills receivable 45,000. so go to trade receivable, bills receivable 45,000. advance to supplier students, again short term loans and advances. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ बनाया मैंने शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस नंबर 14. एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर स्टूडेंट्स. ओके, advance to suppliers, how much it is given, advance to suppliers 27,500, 27,500. अगेन आई रिपीट, यहाँ पे स्पेस नहीं है नंबर 14 बनाने के लिए, एंड आई डोंट वांट टू गो द नेक्स्ट पेज. सिंपल रीजन, मैं चाहता हूँ सॉल्यूशन पूरा आपके सामने हो एज फार एज पॉसिबल. हाँ, कोई ऑप्शन नहीं होगा. व्हेन वी स्टार्ट विद बैलेंस शीट P&L तो बहुत सारे पेज यूज होंगे, बट एज फार एज ऑफ नाउ, एज फार एज पॉसिबल आई वांट टू कीप द सॉल्यूशन विद इन 2 पेजेस. तो आपके सामने 2 पूरा पार्ट रहेगा स्टूडेंट्स. सो नंबर 14 आई हैव ड्रॉन हियर, ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे. बट इट्स पार्ट ऑफ द फेयर आंसर. ये वर्किंग नोट नहीं है, पेंसिल से लिख रहा हूँ तो वर्किंग नोट नहीं, इट्स पार्ट ऑफ योर फेयर आंसर, सॉल्यूशन का पार्ट है वो. सो ओके, 27,500 ये हो गया. कैश इन हैंड बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नंबर 13. Cash in hand, how much it is given cash in hand students, 12,500, 12,500. And then they have given cash at bank balance 1,10,000, 110. Okay, so debit side completed, start with credit side. Equity share capital ₹10 is fully paid. So 4,40,000 को 10 से divide करेंगे तो we'll get the number of shares 44,000. Equity shares of ₹10. Amount was given as 4,40,000. 4,40,000 को 10 से divide किया तो we got number of shares. Same way 9% preference shares of 100. So 1,000, 9% preference shares
ऑफ ₹100. सो 1 लाख होगा स्टूडेंट्स, 1000 इंटू 100 करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सी प्रॉफिट एंड लॉस बाद में लिखता हूँ स्टूडेंट्स, बिकॉज देयर आर सम नॉन डिविजिबल प्रॉफिट गिवन टू अस. तो पहले हम नॉन डिविजिबल प्रॉफिट लिखेंगे. हमेशा ट्राई टू रिमेंबर द सीक्वेंस. पहले नॉन डिविजिबल प्रॉफिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम दिया है हमको, वो नॉन डिविजिबल होता है. तो पहले इसको रिकॉर्ड करते हैं, P&L हम लोग बाद में लिख लेंगे, पर ध्यान रखना है वो लिखना है, मिस नहीं हो जाए. सिक्योरिटीज प्रीमियम आउटर कॉलम, देयर इज नो एडजस्टमेंट, 30,000. देन दे हैव गिवन अस डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो लिखो पहले. डिबेंचर विद शॉर्ट में रिडम्पशन को RED लिख दिया. इसका एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स मैंने कहा भी था उस पर मार्क करना. इट इज गिवन एज 2 लाख. ओके, सो इनर कॉलम में मैंने लिखा 2 लाख, उसका एडजस्टमेंट है. देन नेक्स्ट हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, एक लाइन छोड़ के फिर हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व. इसका भी एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स. सो बेटर रिकॉर्डेड इन इनर कॉलम. जनरल रिजर्व को इनर कॉलम में लिखेंगे हम लोग. जनरल रिजर्व कितना दिया हमको, 75. नाउ एक लाइन छोड़ के नाउ विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है. हाँ स्टूडेंट देखो एडजस्टमेंट, देखो एडजस्टमेंट स्टूडेंट्स प्लीज, एडजस्टमेंट नंबर I, एडजस्टमेंट नंबर I. प्रीवियस ईयर बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो दैट इज ओपनिंग बैलेंस फॉर अस. ओपनिंग बैलेंस कितना, 148,500. पहले ऐसे मैंने एडजस्टमेंट किया है स्टूडेंट्स. देन दे हैव गिवन अस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर का नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. हाउ मच इट इज गिवन, 131,500. डोंट ऐड, अभी और एडजस्टमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है. सो दिस 2,80,000 इज गिवन. ये दोनों को ऐड करो, 2,80,000 होता है. 280 ट्रायल बैलेंस में दिया है. हमने सेम अमाउंट कॉपी किया है, बट दे हैव गिवन दिस वे इन एडजस्टमेंट, तो ऐसा हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट 8% डिबेंचर्स, सॉरी 8% डिबेंचर्स, यस. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स इनर कॉलम में लिखो, बिकॉज वो कुछ इंटरेस्ट इंक्लूडेड है. देयर वाज एन एडजस्टमेंट. 8% डिबेंचर्स, 5,25,000 इनर कॉलम. नेक्स्ट लोन फ्रॉम डायरेक्टर मिस्टर डी, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, लोन फ्रॉम डायरेक्टर. ये ट्रांजैक्शन को कहते हैं ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टीज. डायरेक्टर कंपनी का ही है ना, कंपनी से रिलेटेड इन द सेंस मतलब ऐसा आपके रिश्तेदार वगैरह ऐसा नहीं स्टूडेंट्स. रिलेटेड इट हैज अ वाइडर मीनिंग फॉर कंपनी स्टूडेंट्स, ठीक है. सो डायरेक्टर कैन बी अ रिलेटेड पर्सन. लोन फ्रॉम सब्सिडियरी, डायरेक्टर कैन बी अ रिलेटिव ऑल्सो, बट यहाँ पे दैट इज नॉट ओनली द मीनिंग. रिलेटेड पार्टी हैज अ वाइड मीनिंग. It's a wide term we can say. Subsidiary company, it is given loan from subsidiary company 70,000. कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ. सन्ड्री क्रेडिटर्स स्टूडेंट्स ट्रेड पेबल्स में आएगा. क्रेडिटर्स ट्रेड पेबल स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट था, देखो उसका. क्रेडिटर्स इंक्लूड्स क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, मिला. तो जस्ट वैसे ही लिखेंगे हम लोग, हमको कुछ प्लस माइनस नहीं करना है. क्रेडिटर्स फॉर गुड्स and they've said creditors for expenses. वो कॉपी कर लो. क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 40 है एंड वो 18,500 है स्टूडेंट्स. ओके, और टोटल करके देखेंगे ना स्टूडेंट. टोटल करना नहीं है अभी, टोटल मैच होता है ना जितना ट्रायल बैलेंस में दिया, सेम अमाउंट वी हैव रिकॉर्डेड 58,500. जस्ट एडजस्टमेंट ने कहा था कि अलग अलग लिखो. नेक्स्ट इज बिल्स पेएबल, अगेन ट्रेड पेएबल में ही आएगा. बिल्स पेएबल हाउ मच दे हैव गिवन, 21,500. 21,500. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स स्टूडेंट्स. प्रोविजन फॉर टैक्स 62,500 है और एडवांस टैक्स डेबिट में 60,000 दिया था. तो गो टू शॉर्ट टर्म प्रोविजन. प्रोविजन फॉर टैक्स 62,500 लेस एडवांस टैक्स 60,000. तो स्टूडेंट्स नेट आंसर आउटर कॉलम हो जाएगा 2,500. सो पोस्टिंग्स डन. एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं. अगेन ये पहले भी हमने किया है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स. जब भी ट्रांसफर की बात आती है स्टूडेंट्स, ट्रांसफर टू विच रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड जनरल रिजर्व. जहां पे जा रहा है, ट्रांसफर टू मीन्स इट इज गोइंग टू, वहां पे जा रहा है. जहां जा रहा है वहां पे ऐड करने का, तो हियर विल ऐड ट्रांसफर टू. सो राइट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आता है, P&L. मैंने
पहले भी ट्वाइस आई हैव डन दिस टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. जर्नलिज्म में भी लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल. सो वेन एवर दे यूज द टर्म ट्रांसफर टू, जहां जा रहा है वहां ऐड करो एंड पीएनएल से सब्ट्रैक्ट करो. ये 50 कहा था उन्होंने एंड जनरल रिजर्व 25. टोटल सब हम बाद में करते हैं स्टूडेंट्स. ओके डन. और पीएनएल से माइनस ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व 50 लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 25. ठीक है, टोटल सब बाद में करेंगे स्टूडेंट्स. सो 2 इफेक्ट्स डन. कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर. अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, मैंने कहा था ऐसे केस में खाली क्या नोट्स टू अकाउंट्स में, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन. मेरी बुक में, नोटबुक में वहां स्पेस नहीं है वो पेज पे, तो मैं यहां लिख रहा हूं. जस्ट क्या लिखते थे हम लोग, डायरेक्टर्स रेकमेंड, या प्रपोज टर्म है तो लिखने का प्रपोज डिविडेंड. क्या लिखा, डिक्लेयर्ड लिखा. सो डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड या रेकमेंड डिविडेंड on equity shares at what rate, 15%. so equity share capital देखो अपना, देखो equity share capital is 4,40,000, तो 440 into 15%, जो भी आंसर आता है. बट दिस आंसर विल नॉट गो टू बैलेंस शीट. ये जस्ट रेफरेंस पर्पस के लिए स्टूडेंट्स, आपको ऐसा लिख के और उसको भूल जाओ बस. आपको जस्ट इंडिकेट करना है कि डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया है डिविडेंड. And no second effect for this adjustment. पहले भी मैंने किया twice thrice before. The next adjustment C, entire authorized capital has been issued and subscribed. पहले भी मैंने ऐसे adjustment किया है. इसका simple meaning क्या है, entire authorized capital is issued and subscribed. मतलब ये दोनों same है students. इसका simple meaning होता है दोनों same है. So I will copy the same thing. 44,000 equity shares of rupees 10,000, 9% preference shares of rupees 100. So this will be 4,40,000. वो सेम कॉपी करना है हमको. एंड दिस इज 1 लाख और डबल अंडरलाइन हो गया. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, दिस वाज एडजस्टमेंट सी. Number D, 8% debentures are secured against fixed asset. Figure in the trial balance includes interest accrued and due 25,000. So students, यहाँ से minus interest accrued and due. टोटल सब बाद में करेंगे प्लस माइनस. अभी हम लोग खाली इफेक्ट दे देते हैं. 25,000. सेकेंड इफेक्ट अदर करंट लाइबिलिटी. प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम एडजस्टमेंट मैंने किया. ट्वाइस थ्राइस बिफोर वी हैव डन दिस. इंटरेस्ट अक्रूड and due on debentures 25,000. क्योंकि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हमेशा अदर करंट लाइबिलिटी में जाता है. सो इफ इट इज इंक्लूडेड हियर, सबट्रैक्ट फ्रॉम हियर, सेकंड इफेक्ट वहां पे चला गया. हाँ, व्हाट दे सेड, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट व्हाट, बस वो लिख दो, सिक्योर्ड अगेंस्ट, इसके आगे सिक्योर्ड है फिक्स्ड एसेट, ऑल फिक्स्ड एसेट. बस ये इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा दिस सेंटेंस का, सिक्योर्ड अगेंस्ट फिक्स एसेट. वो इट्स अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक टाइप का डिस्क्लोजर है. लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स एंड सब्सिडियरी कंपनी आर अनसिक्योर्ड. ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो लोन था ना, ये दोनों भी क्या था, अनसिक्योर्ड. तो बस ऐसा लिख दो, अनसिक्योर्ड. एक्चुअली टॉप पे लिखना चाहिए हेडिंग में, देन लिखने का था. अभी ऊपर स्पेस नहीं है तो आई एम रिकॉर्डिंग बिलो. एंड नो सेकेंड इफेक्ट अगेंस्ट स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्या था, जैसे नंबर एफ, क्रेडिटर्स इंक्लूड स्टूडेंट्स वी हैव ऑलरेडी डन. देखो, एक क्रेडिटर्स इंक्लूड्स फॉर गुड्स एक्सपेंस हो गया. स्टॉक कंप्राइजेस ऑफ रॉ मटेरियल WIP, इसका कोई सेकेंड इफेक्ट नहीं होता, डन. डेटर्स ड्यू फॉर मोर देन 6 months, डन. नंबर आई ऑलरेडी डन, ये 148 एंड 131,500. ओके, एंड इग्नोर प्री, नो मोर एडजस्टमेंट. कुछ बाकी तो नहीं रह गया, नहीं ना स्टूडेंट्स. तो स्टार्ट करते हैं, आप क्लोज करना स्टूडेंट. विल स्टार्ट क्लोजिंग. हाँ, खाली ध्यान रखना नंबर 14 जो है मैंने ये पेज पे बना, बस इतना ध्यान रखना स्टूडेंट्स. मेरे को नोटबुक पे मुझे नहीं बनाना था. आई डोंट वांट टू गो ऑन द नेक्स्ट पेज, इसके लिए मैंने ऐसा किया स्टूडेंट्स. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अभी.
क्लोज करना, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए। तो 4,40,000 प्लस 1 लाख, तो इट विल बी 5,40,000। अच्छा, ये सबका टोटल करना है। ये 2,50,000, सॉरी 2 लाख प्लस 50 विल बी 2,50,000। 75 प्लस 25 विल बी 1 लाख। अभी 148,500 प्लस 131,500 माइनस 50 and 25 75, so 2,05,000 plus 1 lakh plus 2,50,000 plus 30, so it is 585 total. 585,000 reserves का total. This will be 525 minus 25, so outer column will be 5 lakh. टोटल भी सेम रहेगा, 5 लाख ही रहेगा स्टूडेंट्स। इसका टोटल 10 प्लस 70 विल बी 80,000। 80,000। देन क्रेडिटर्स फॉर गुड्स 40 प्लस 18,500 प्लस 21,500, 80,000। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू 25,000। दिस विल बी, टोटल करेंगे तो 2,500। फिक्स एसेट का टोटल सेम रहेगा 7,50,000। इन अच्छा स्टूडेंट्स, गलती हो गई, इन्वेस्टमेंट्स मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ, इट इज अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने ध्यान नहीं दिया। सो टोटल करेंगे तो 2,50,000। ट्रेलरी एक्सपेंसेस 20,000 टोटल। अदर नॉन करंट एसेट, इन्वेंट्रीज 250, 50 एंड 75, 375। ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल हो गया एंड दिस, सो 45,000 प्लस 122,500, 167,500 हो गया ये। कैश इन कैश इक्विवेलेंट 1,10,000 प्लस 12 करेंगे तो 122,500। दिस विल बी कैश इन कैश इक्विवेलेंट 1,22,500। अच्छा स्टूडेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पे है 1,27,500, 127,500। सो 13, पहले मैं इसी का आंसर लिख लेता हूँ 14 का, दैट इज 127,500। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 इज 5,40,000। नंबर 2 वॉज 585। नंबर 3 इज 5 लाख। Number 4 is 80,000, 80. Number 5 is again 80,000 है. Number 6 is 25. Number 7 is 2,500. Okay. Number 8 fixed asset 7,50,000. Investments 2,50,000. Other non-current asset number 10 20,000. Number 11 3,75,000, 375. 12 167,500. 13 122,500. ओके, और 14 ये टोटल मैंने यहाँ पे लिखा 127,500. 14 is 127,500. 540 plus 585, it comes to 11,25,000. 11,25,000, 11, ये तो 5 लाख ही रहेगा आउटर कॉलम. Then 88 is 160, 160 plus 25, 185, 187,500. So 11,25,000 plus 5 lakh plus 187,500. That is 18,12,500. 7,50,000 plus 2,50,000 is 10 lakh. 10,20,000 हो जाएगा ये. Then 375 plus 167,500. Sorry. 3,75,000 plus 167,500 plus 122,500 plus 127,500. Total comes to 7,92,500 plus 10,20,000, 18,12,500.
बैलेंस शीट टाली। ओके, दिस इज द बैलेंस शीट। अगेन ये नोट नंबर 14 मैंने यहाँ बनाया है और वो डिविडेंड रिकमेंडेड वो एडजस्टमेंट यहाँ लिखा है। एक्चुअली शुड बी रिकॉर्ड इन द नोटबुक। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता था स्टूडेंट्स, दैट इज द ओनली रीजन। ओके, ये हमारा नोट्स है यहाँ से, राइट फ्रॉम शेयर कैपिटल टिल कैश एंड कैश के बाद। राइटिंग विद पेंसिल इज द रीजन इज व्हाट स्टूडेंट्स, सपोज कोई मिस्टेक हुआ, एरर हुआ तो आई कैन रेक्टिफाई दैट। टोटल में कुछ मिस्टेक हो गया तो, नहीं तो फिर सब कैंसिल करो तो बाद में प्रेजेंटेशन सब खराब हो जाता है स्टूडेंट। दैट इज द ओनली रीजन। ठीक है, आप लोग पेंसिल से मत करना। इफ यू आर क्विक इनफ ना स्टूडेंट्स, एग्जाम में भी पहले पेंसिल से कर लेने का, बट उसमें प्रॉब्लम क्या हो, रब करो तो थोड़ा पेज खराब हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्या था, मैंने बताया लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, तो नीचे लिख देना। एक्चुअली लिखना चाहिए टॉप पे, मैं भूल गया था, अब नीचे लिख लेना। अभी नीचे स्पेस होगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, यू कैन राइट लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। मैंने कहा था ना डायरेक्ट सब्सिडरी से लोन होगा तो वी कॉल इट एज लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लोन फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज। अच्छा, ये क्वेश्चन में ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जिसका मैं नोट लिखूं। ओके, इसके लिए मैं कोई नोट नहीं लिख रहा हूँ, सारे एडजस्टमेंट सिंपल थे। देखने में लेंदी ए से लेके आई तक एडजस्टमेंट्स था, बट सिंपल एडजस्टमेंट्स थे स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट बिफोर। नाउ वी आर सॉल्विंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन, अक्टूबर 2012 है, अक्टूबर 2012। Following trial balance is extracted from the books of Vishy Company Limited as on 31st March 11. फिक्स्ड एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एट कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, डेटर्स, अनसिक्योर्ड इन गुड, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, अदर नॉन करंट एसेट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज अदर नॉन करंट एसेट। Next, advance tax paid for financial year 9-10, financial year 10-11. Advance tax or provision for tax adjust होता है students. Okay. Prepaid expenses, short term loans and advances. Okay. Next step. Paid up share capital, 5% debenture, long term borrowings. Provision for tax or advance tax हम लोग set off कर लेंगे. Bills payable, trade payable, creditors, trade payable, general reserve, reserves and surplus. Profit and loss account, reserves and surplus, net profit for the year, reserves and surplus, outstanding expenses, other current liability, outstanding expenses, other current liability, unsecured loan, long term borrowings, कुछ कहा नहीं है तो स्टूडेंट्स हम लोग long term borrowings में लिख लेते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट सिंपल है। डिबेंचर्स आर secured against stock, transfer to general reserve 15,000, put a mark on general reserve, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, so put a mark on general reserve. Proposed dividend, ignore previous year figures. Market value of investment is 2,20,000, face value is 2 lakh, and there is nothing else. Simple सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एकदम जल्दी से हो जाएगा। So we start पहला notes to accounts. नंबर 1 हमेशा क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल। ऑथराइज दिया नहीं है, फिर भी वी हैव टू ड्रॉ द हेडिंग। ऑथराइज नहीं है, देन इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, पेड अप, वो है इक्विटी शेयर दिया हमको। ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं। नंबर 2 रिजर्व्स एंड सरप्लस, पीएनएल है, ओपनिंग बैलेंस, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जनरल रिजर्व, और ट्रांसफर भी करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स तो कम से कम 1 2 3 4 5 6 7, चलो 8 लाइन्स रख के नंबर 3। अच्छा सुनो, गलती किया है, आई एम सॉरी। ठीक है, वो हमारी वी फर्स्ट रेफर द बैलेंस शीट ना, हम लोग बैलेंस शीट पे नंबर्स डिसाइड करते हैं, वैसी आदत डालो। आई कैन ड्रॉ डायरेक्टली द नंबर्स, चलो ठीक है, बट एज अ स्टूडेंट ना हम लोग बैलेंस शीट से। शेयर कैपिटल दिया है, यस, नंबर 1, रिजर्व्स नंबर 2,
कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स था स्टूडेंट्स? डिबेंचर्स था ना नंबर 3, नो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. शॉर्ट टर्म बोरिंग्स था कुछ? आई डोंट थिंक सो. नहीं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं था. ट्रेड पेबल है, क्रेडिटर्स वगैरह, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, दैट विल बी नंबर 4. अदर करंट लाइबिलिटी था स्टूडेंट्स? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था ना नंबर 5. शॉर्ट टर्म प्रोविजन यस है स्टूडेंट्स, वो प्रोविजन फॉर टैक्स और वो एडजस्ट करना है एडवांस टैक्स. फिक्स्ड एसेट है नेट ब्लॉक, फिक्स्ड एसेट विल बी नंबर 7. इन्वेस्टमेंट्स भी दिया है नंबर 8. लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस नहीं है. अदर नॉन करंट एसेट है, एनी फिक्टिशियस एसेट या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स दिया नंबर 9. करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है. इन्वेंट्रीज है, स्टॉक एट कॉस्ट दिया था, दैट विल बी नंबर 10. ट्रेड रिसीवेबल दिया है 11. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक बैलेंस दिया है नंबर 12 हो जाएगा. शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस और प्रीपेड एक्सपेंस था 13. सो इन ऑल 13 नोट्स बनाने हैं हमको. ओके, इन ऑल 13 नोट्स बनाना है. ओके, स्टार्ट करते हैं. सो नंबर 3 तक तो आ गए थे. नंबर 3 क्या है हमारा? नंबर 3 इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एक ही था, डिबेंचर, और उसका बस सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक बोला है, कोई एडजस्टमेंट नहीं. सो 1 2 3. नंबर 4 वी डिसाइडेड ट्रेड पेबल्स. क्रेडिटर्स था और बिल्स पेबल दोनों था, बट उसका कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. सो 3 लाइन्स में हो जाएगा. नंबर 5 अदर करंट लाइबिलिटी. अदर करंट लाइबिलिटी क्या था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, आई डोंट, और कुछ नहीं था ना. जनरल रिजर्व, डिबेंचर्स, प्रपोज्ड नहीं, एक ही है. सो नंबर 6 विल बी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. Number 7 fixed asset. Number 8 is non-current investments. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी इसी तरह, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनीज, और उसका एडजस्टमेंट भी नहीं. ओके. नंबर 9 अदर नॉन करंट एसेट. वो भी एक ही है स्टूडेंट्स. नंबर 10 था इन्वेंट्रीज. Eleven is trade receivables. डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों है ना, या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है. 12 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश बैंक दोनों था, सिर्फ बैंक था. ओके, लास्ट नंबर 13 शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करते हैं. पहला पोस्टिंग्स कर लेते हैं. फिक्स्ड एसेट्स नेट ब्लॉक. तो फिक्स एसेट के अंदर ही लिख लेंगे फिक्स्ड एसेट. नेट ब्लॉक मीन्स WDV, फिक्स्ड एसेट नेट ब्लॉक. हाउ मच इट इज गिवन? 7,10,000. देयर इज नो एडजस्टमेंट, सो आउटर कॉलम. नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ कंपनी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ companies.
2,30,000 अगेन इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है स्टूडेंट्स. 2,30,000. नेक्स्ट स्टॉक एट कॉस्ट इन्वेंट्रीज में आएगा 2 लाख. नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम. नेक्स्ट डेटर्स अनसिक्योर्ड इन गुड ट्रेड रिसीवेबल्स. यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है. ड्यू फॉर मोर देन 6 months. अनसिक्योर्ड एंड गुड का मतलब स्टूडेंट्स मतलब कोई बैड डेट्स नहीं है, सारे पैसे आपको मिलेंगे. डेटर्स अनसिक्योर्ड गुड 1 लाख. नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल 70,000. नेक्स्ट बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. Cash at bank, how much it is given? 87,500. Discount on issue of shares, other non-current asset. Preliminary expenses भी यहीं पे आता है. Underwriting commission होगा तो यहीं पे आएगा. All fictitious assets या ऐसे expense जो बैलेंस शीट में जाते हैं ना स्टूडेंट, जिसको हम fictitious ही कहते हैं, वो सब other non-current asset. हाँ, if it is to be written off after 12 months, within 12 months राइट ऑफ करना है तो अदर करंट एसेट में लिखना. अदर करंट एसेट पहले भी मैंने डिस्कस किया है. अच्छा, एडवांस टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे. प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस हाउ मच? 10,000. आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. क्रेडिट साइड पेड अप शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each. सो इशूड सब्सक्राइब्ड में 50,000 equity shares of rupees 10 each. Amount 5 lakh. 5% debentures, long term borrowings. 5% debentures कितना है स्टूडेंट्स? 1 लाख. प्रोविजन फॉर टैक्स देखो 2009-10 1,05,000. डेबिट साइड पे एडवांस टैक्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2009-10 95,000. तो प्रोविजन फॉर टैक्स बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स. सो प्रोविजन फॉर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2009-10 कितना है? 9-10 का प्रोविजन फॉर टैक्स 1,05,000. उसके अगेंस्ट में एडवांस टैक्स एडजस्ट कर लो. 9-10 का ही है, दोनों फाइनेंशियल ईयर सेम होना चाहिए. 9-10 फाइनेंशियल ईयर दिया होगा, प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर वो सेम होना चाहिए. 95,000. So 1,05,000 minus 95. So outer column 10,000. Same way again provision for tax. Next year का दिया मैंने 2010-11 का दिया. 10-11 है कि? हाँ 10-11 yes. Inner column 95,000. Advance tax देखो 10-11 का स्टूडेंट्स. Advance tax how much is advance tax given? It is 90,000 90. So 95 में से 90 माइनस करो. सो आउटर कॉलम 5,000. दोनों केस में प्रोविजन फॉर टैक्स बढ़ा था, इसके लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा. नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसके बाद क्या है? बिल्स पेएबल, ट्रेड पेएबल. बिल्स पेएबल हाउ मच दे हैव गिवन? 45. नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स 70. अगेन ट्रेड पेएबल्स. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस. कोई नॉन डिविजिबल प्रॉफिट तो नहीं है, चलो ठीक है. बट जनरल रिजर्व इनर कॉलम में लिखना, इसका एडजस्टमेंट है. जनरल रिजर्व इज हाउ मच? 1 लाख ही है ना. या जनरल रिजर्व 1 लाख. नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 1st April 2010. 1st April 2010 मतलब ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस का डेट 31st March 11 दिया. सो विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 1st April 20,000 प्लस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर 346,500. नेक्स्ट
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदर करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना दिया 1515। नेक्स्ट अनसिक्योर्ड लोन, नाउ नथिंग इज सेड स्टूडेंट्स, तो मैं इसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में लिख देता हूँ, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी हो, थोड़ा सा डाउट है मुझे, अनसिक्योर्ड है ना, क्योंकि इट कैन बी स्टूडेंट्स, इट कैन बी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ऑल्सो, थोड़ा सा मुझे इसके बारे में डाउट है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसा रहेगा तो आई विल क्लियर इट। अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन इज 2 लाख। एडजस्टमेंट, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक, तो क्या करना है, डिबेंचर्स के नीचे खाली लिखना है एडजस्टमेंट नंबर 1, सिक्योर्ड अगेंस्ट स्टॉक। एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, सो जनरल रिजर्व में ऐड होगा, पीएनएल से माइनस होगा, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कितना ट्रांसफर करना है 15,000। ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस, प्रपोज डिविडेंड इज रिकमेंडेड स्टूडेंट्स, तो हम लोग ऐसे बस लिख देते हैं, डिविडेंड रिकमेंडेड या प्रपोज्ड, कितना प्रपोज किया है स्टूडेंट्स 10% एट द रेट ऑफ 10%। कितना है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, सी इशूड सब्सक्राइब कैपिटल, उसका 10% फाइन करेंगे तो 50,000। नो सेकेंड इफेक्ट फॉर दिस एडजस्टमेंट, ignore previous year dividend and corporate dividend tax, market value of investment 2,20,000, so investment के नीचे हम लोग लिख देंगे market value rupees 2,20,000 and there is nothing else, that's all। ये आप क्लोज कर लेना और बैलेंस शीट में सब ट्रांसफर कर लेना, सिंपल है। कल ये इसका मैं टोटल कर देता हूँ, 1 लाख प्लस 15, सो 115,000। P&L will be 20 plus 346,500 minus 15, 351,500। या आप क्लोज कर लो सबका टोटल एंड रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट, वो सिंपल एकदम, ठीक है।